Okay, good afternoon and welcome everyone. आप सबको गुड आफ्टरनून, आप सबका स्वागत है। So hope you've had your lunch. आशा करती हूँ आप अपना दोपहर के भोजन खा चुके हैं। I think there are we have some brothers and sisters who are from other nations. So we have people from two other countries हमारे who are पास joining us दूस- online. दूसरे भाई बहन जो है ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं, दो जो है दूसरे देश में से जुड़े हैं। Okay, so I hope whatever meal, whatever time of the day it is, you've had your meal as well. आपका देश में जो भी समय है, आपका भी हम स्वागत करते हैं। So really want to appreciate all of you. This is week 4. हम सब आप सबको जो है मान देना चाहते हैं कि ये चौथा सप्ताह है। We know it's not easy to sit in the class and listen to the teachers. हम जानते हैं कक्षा में बैठकर शिक्षकों का सुनना आसान नहीं है, But you are doing a good job. लेकिन आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। अपने आप को Okay. ताली बजाएं। So yeah, if you want to clap for yourselves, it's good. Okay, same thing for online students. We know it's not easy, but thank you so much for attending these classes. ऑनलाइन छात्रों के लिए भी वही है, इसमें शामिल होना आसान नहीं है। आप लगातार शामिल हो रहे हैं, इससे आपको भी हम धन्यवाद कहते हैं। And we pray that whatever we are sharing here, that it benefits each one of you. हम प्रार्थना करते हैं कि जो कुछ भी यहाँ साझा कर रहे हैं वो प्रत्येक के लिए वो जो है आपका लाभदायक हो। So let's pray and let's start today's classes. आइए हम प्रार्थना करते हैं और इस कक्षा को शुरू करते हैं। Heavenly Father, we thank and praise you, Lord, for this day. स्वर्गीय पिता, इस दिन के लिए हम आपका धन्यवाद और स्तुति करते हैं। Lord, we thank you for all that we are going to learn today. प्रभु जी, जो कुछ हम सीखने जा रहे हैं प्रभु, उन सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। Lord, we pray that you will give us focus and understanding. पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप हमारे लिए केंद्र और समझ को देंगे। And Lord, help us, Lord, to have a ready heart to receive your word. प्रभु जी, हमें सहायता कीजिए प्रभु, एक तैयारी मन के साथ आपका वचन को ग्रहण करने के लिए। Lord, we know when our heart is good ground, it will bear fruit. प्रभु जी, हम जानते हैं प्रभु हमारा हृदय जो है अच्छा भूमि है और अच्छा फल लाएगी। Yes, Father God. Lord, we submit ourselves into your hands. हाँ प्रभु, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। We ask for your blessings upon all the teachers and all the students, Lord. हम आपके आशीषों को सारे टीचर्स पर और छात्रों पर मांगते हैं प्रभु। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। So we will quickly see what we learned yesterday. जल्दी से हम देखेंगे कल हमने क्या सीखे थे उसके बारे में। So tell me, what did we discuss yesterday? क्या बता सकते हैं कल हमने क्या किस बात पर चर्चा की थी? What is this course called? इस पाठ्यक्रम का नाम क्या है? Believers Authority. विश्वासी का अधिकार। Okay, so why does God want us to take authority? परमेश्वर क्यों चाहते हैं कि हम अपना अधिकार को लें? We discussed all this yesterday. इस सब बात हमने कल चर्चा की थी। Why should we take authority? हमें क्यों अपना अधिकार को लेना जरूरी है? Okay, yes, to rebuke the work of Satan. Yes, to fulfill our responsibility on earth. पृथ्वी पर हमारा जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए। And you remember in Genesis we saw that God is the one who gave us dominion and authority. That is God's original design. उत्पत्ति में हम देखे थे कि परमेश्वर का मूल जो डिजाइन थी कि उन्होंने हमें प्रभुता और वश में करने की अधिकार दिए थे। And then what happened? फिर बाद में क्या हुआ? So Garden of Eden, we had the authority. Then what happened? कुछ समय तक हमारे पास अधिकार थी, उसके बाद क्या हुआ? Yes,
Yes, because of the sin of Eve, man lost that authority. हवा के पाप के कारण जो है मनुष्य ने जो उसके पास जो अधिकार थी उसको खो दिया. And then God sent Jesus to redeem us and give us back the authority. और यीशु आए और उस जो खो गए थे उस अधिकार को लेकर हमें वापस दिए. Do you remember all this? क्या आपको ये सब याद है? Okay, great. Then we also talked about how the spiritual world can influence the natural world. तो हमने ये भी देखे थे कि आत्मिक जगत कैसे स्वाभाविक जगत को प्रभावित करती है करके. So what are some ways in which we engage with the spiritual world? कौन से ऐसे तरीके हैं जो हम जो आत्मिक जगत के साथ काम कर सकते हैं? Just a moment. I mean, you think about it, but I'll just request our team. Is there some cooler? Oh, okay. Thank you. All right. Yes. How do we engage the spiritual world? हम कैसे आत्मिक जगत पर रह सकते हैं, काम में ला सकते हैं? Yes. Disciplines, correct. Discipline, dedication, sacrifices, and rituals. Okay. So, and religious practices. ये जो धर्म के जो प्रथा है उसके पालन करने के द्वारा, जैसे अनुशासन है, समर्पण है, बलिदान है और धर्म की विधियों का पालन करने के द्वारा हम इसमें शामिल होते हैं. So this is, with these things, even today people are connecting to the dark world. आज भी इन चीजों के द्वारा जो है लोग जो है अंधकार के राज्य के साथ जुड़े हुए हैं. So you may have seen and you may have heard that people practice calling spirits. आपने सुने होंगे, देखे होंगे कि लोग जो इस बात को अभ्यास करते हैं कि आत्माओं को बुलाने के बारे में, talking to spirits, आत्माओं के साथ बात करना, then finding out future, और जो भविष्य को जानना. right? So there are all kinds of occultic practices where people are connecting to demon spirits. जहाँ इस प्रकार की जो अभ्यास जो है लोग जो है अंधकार के शैतान के आत्मा के साथ जुड़ रहे हैं. And the way to connect, we already said, disciplines. Disciplines means maybe they are chanting or saying some prayers. जुड़ने का एक तरीका हमने बताए थे कि अनुशासन, जैसे कि प्रार्थना या मंत्र बोलना, or get up early in the morning, do this, do that, या तो सुबह जल्दी उठकर ये करना वो करना. or and we can see some kind of sacrifice. They will sacrifice things, they will sacrifice animals, shed blood. वे जो है चीजों की बलिदान करते हैं या जानवरों का बलिदान करते हैं या बहाए हुआ लहू का बलिदान करते हैं. Or they take things and they dedicate. या तो चीजें लेकर उसका समर्पण करते हैं. So dedication means when something is given to demon spirits will come and occupy. समर्पण का मतलब होता है कोई चीज को लेकर शैतान के आत्मा को दे देते हैं तो शैतान उसमें आकर वास करने लगता है. Right? So these are ways in which people are engaging the kingdom of darkness in our natural world. इस प्रकार के जो तरीके हैं इनके द्वारा जो है लोग जो है अंधकार के राज्य के साथ बने रहते हैं और ये जो प्राकृतिक जगत है उसके साथ जुड़ते हैं. As believers, we must be alert. विश्वासी होने के नाते हमें सतर्क होने की जरूरत है. So we should not participate in these disciplines, sacrifices and dedications. तो हम जो है इस अनुशासन, समर्पण और जो बलिदानों में शामिल नहीं होना चाहिए. Right? And we need to know how to rebuke, how to overcome, how to destroy. हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि हम किस प्रकार से उस पर विजय पा सकते हैं, कैसे उसे डांट सकते हैं और उसमें कैसे हम विजयी होकर जी सकते हैं. So we will talk more about the steps which we can take a little bit later. तो और अधिक बाद में जो है इसके बारे में किन किन कदमों को हमें उठाना चाहिए इसके बारे में हम देखेंगे. So what is the meaning of authority? अधिकार का मतलब क्या है? Yes, keys of the kingdom, but
how do you understand it, or how do you use it? आप इस अधिकार के बारे में कैसे समझेंगे और इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? So what did we say about authority and power? You remember? We discussed. हमने Yeah. अधिकार और So tell सामर्थ me. के बारे में चर्चा किए थे। क्या इसके मतलब क्या है? Mm. Right. So that examples are okay, but what was the point we made? इसका मतलब मुख्य बात क्या है? So, yes, please. Divine ability. Ability. Yes. Ability is one very good way of describing authority. अधिकार को वर्णन करे का बहुत ही अच्छा तरीका जो है योग्यता। And then, of course, what brother said, with the ability comes rights, privileges, तो उस योग्यता के साथ जो है हमारे हक और विशेष अधिकार आती है, a right to influence, और हमारे पास ये अधिकार होती है लोगों को प्रभावित करने की, right? And ability to overcome. और हमारे पास ये क्षमता होती है कि उसमें विजय प्राप्त करने की। So, power comes from the Greek word, what? पावर यूनानी शब्द, Dunamis. Very good. सामर्थ Yes. जो है, सामर्थ का यूनानी शब्द जो इस्तेमाल किया वो डुनामिस है। And how do you explain dunamis? आप ये डुनामिस शब्द को किस प्रकार से समझा सकते हैं? Yes, miraculous power or supernatural power. अलौकिक सामर्थ या तो चमत्कारी सामर्थ। Right? So God gives us both authority and power from His kingdom. परमेश्वर जो अपने राज्य में से हमें जो अधिकार और सामर्थ्य दोनों देते हैं। Okay, now what can we say about Lucifer? हम लूसीफर के बारे में क्या कह सकते हैं? Anyone? Based on yesterday's discussion? कल के चर्चा के ऊपर Okay, से आपको Ashish बता- wants to share. Mike, please. If Mike is there, please pass on. He is Whatever you perf- know, tell me. He is perfect in all his ways. Right, he was created perfect. वो जो उसका जो जब सृजा गया तो बहुत ही सिद्ध था। So, what are the things he had? क्या क्या चीजें थी उसके पास? You remember? Wisdom, Wisdom, Buddhi, beauty, beauty, wealth, सुंदरता, धन, music, art, business, कला थी, व्यवसाय थी, anointing, ruler, अभिषेक थी, and rulership. और उसके पास शासन करने का भी था। But yeah, music, dance, everything. Okay. So, what happened to Lucifer? लूसीफर को क्या हुआ? Pride. Okay, very good. Okay. Pride and घमंड हो pride गया। and who's gonna fill in the blanks? घमंड है, घमंड के साथ खाली जगह को भरिए। Pride and dash. Very good. Self-deception. खुद को धोखा Okay. देना, So these were the issues. ये सारे कारण थे। And because of pride and self-deception, he rebelled against God. उसका घमंड और खुद के धोखे के कारण जो है परमेश्वर का विद्रोह किया उसने। And then God threw him out of heaven. तो परमेश्वर जो है उसे स्वर्ग से गिरा दिए। He came together with how many angels? वो कितने लोगों के साथ आया? 1/3 of the angels, 1/3 स्वर्गदूतों के साथ। right? And he continues to do his work here on the earth. वो अपना यहाँ पृथ्वी पर अपने काम को लगातार करता जा रहा है। So these are the things we learned yesterday. ये सारी चीजें जो है कल हम सीखे थे। Today, let's continue from chapter 3. आइए हम पार्ट 3 से शुरू करते हैं। We'll try to understand demons. हम जो शैतान के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। So in English, it is Satan and demons. I don't know how it is in Hindi. हिंदी में शैतान और दुष्ट आत्माएं। Yes. So today we will understand about both of these, Satan and demons. इन दोनों के बारे में हम समझेंगे, शैतान और उसके दुष्ट आत्माएं। We already explained yesterday that demons are fallen angels, कल हमने समझाए थे जो शैतान जो है पतित स्वर्गदूत है, and we usually call them or describe them as disembodied spirits. हमें आमतौर पे उन्हें बताते हैं कि उनका कोई शरीर नहीं रहती है, बिना शरीर का आत्मा है।
why do we call them disembodied spirits? देह रहित आत्मा क्यों हम कहते हैं उन्हें? See, we can call them fallen angels also. हम उन्हें तो पतित आत्मा भी बोल सकते हैं, स्वर्गदूत भी बोल सकते हैं। We call them disembodied spirits because they are always looking for a body. हम इसलिए उन्हें देह रहित स्वर्गदूत या आत्मा कहते हैं क्योंकि हमेशा जो है अपने रहने के लिए वो जो है शरीर को ढूंढते रहते हैं। So that is their nature. वो उनका स्वभाव है। They don't want to be just by themselves. वो अपने आप में नहीं रहना चाहते हैं, They want somebody. उन्हें कुछ शरीर चाहिए। So normally they will look for a human body. आमतौर पे जो है वो जो है मनुष्य के शरीर की खोज में रहते हैं। But apart from human body, they can even occupy animals. वे जो है मनुष्य के शरीर के अलावा जो है जानवरों के अंदर भी जाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। Do you remember the time when Jesus cast out many evil spirits? क्या आपको याद है यीशु मसीह ने एक मनुष्य के अंदर से कई सारे दुष्ट आत्माओं को निकाले थे? And they all asked Jesus, send us into the pigs. वे सब बोले कि यीशु मसीह से बोले मुझे सुअरों में जाने के लिए दो। So the spirits went inside the pigs. वो आत्माएं जो है सुअर के अंदर चली गई And the pigs went and they killed themselves. और सुअर जाकर अपने आप को पानी में गिराकर मर गई। So our understanding is spirits can enter animals. तो इस बात से हम समझ पाते हैं कि आत्मा जो है जानवरों के अंदर भी जा सकती है। And in Deuteronomy chapter 7, God talks about abominable objects. और व्यवस्था वरन 7वें अध्याय में परमेश्वर जो है घृणित वस्तुओं के बारे में भी बता रहे हैं। So things, चीजें, objects जो वस्तु है can contain spirits. उसमें भी आत्मा हो सकती है। So people have this habit. They will do something on maybe a bracelet. लोग ऐसा करते हैं कि जो हाथ में पहनते हैं ब्रेसलेट है या तो चूड़ी है, उसमें जो है कोई भी कार्य ऐसा करते हैं, Right? And then they will wear it. उसके बाद उसको पहनते हैं। Or they will take some small statue and they'll do something on it and they'll keep it. और छोटा सा एक मूर्ति लेते हैं, उस पर कुछ करते हैं और उसे रख लेते हैं। Or they will take some vegetable, they'll do something, tie it in a cloth, put it somewhere. कुछ सब्जियों को भी लेते हैं, कपड़े में बांध के कुछ कर फिर कहीं भी टंगा देते हैं। So notice these objects, right? It's like inviting the demon spirits and saying, come and get into this. ध्यान दीजिए, ये वस्तुएं जो है इस प्रकार से है कि मतलब आत्माओं को आकर्षित करें कि आ जाओ इसमें, इसके अंदर आ जाओ, इस तरह से बुलाना होता है। So we are calling demons disembodied spirits because they need somebody. They will look for a body, enter it. हम शैतान को देह रहित आत्मा इसलिए कहते हैं वो क्योंकि शरीरों को किसी ना किसी प्रकार के शरीर को वे ढूंढते हुए खोज में रहते हैं। So if they don't get a body, they also like to occupy buildings. अगर उनको शरीर नहीं मिली तो वो जो है इससे इमारतों को भी अपने उसके अंदर भी रहने लगते हैं। So sometimes people will dedicate that space to some goddess, some god. Basically what they are doing is they are saying, okay, spirits come and take over. लोग क्या है कभी कभी किसी भगवान को या देवी देवताओं को जो है उसको समर्पण करते हैं, जिसका मूल अर्थ जो है उन्हें आकर रहने के लिए बुला रहे हैं। Right? So this is the reason we are saying that these spirits are looking for a body. इसी कारण के लिए हम कहते हैं कि आत्माएं जो है शरीर को ढूंढ रही है। The next thing about demon spirits is they follow a structure or hierarchy. तो अगली बात जो है वो जो है एक संरचना को ढूंढते हैं या तो एक संगठन को बनाते हैं। It's like a kingdom. एक राज्य के लिए। So if you know a kingdom, there is a king. एक राज्य है तो वहाँ एक राजा होता है। There will be ministers. वहाँ मंत्रियां होते हैं। There will be other categories of people. उसके बाद अलग अलग स्तर के लोग रहते हैं। Now, in the demonic world, it's that kind of setup. और शैतान के राजा संसार में भी इसी प्रकार का बना हुआ रहता है। So Satan is the one who rules the kingdom. शैतान है पूरा राज्य पर राज्य करता है। And he has spirits whom he has appointed as leaders. और उसके पास आत्मा है जिन्हें वो नेता के रूप में उन्हें नियुक्त किया है। And under those leaders, there are spirits that will go and do the work. और उन नेताओं के नीचे और आत्मा होते हैं, वे जाके काम करते हैं। So we see the names of
these categories in Ephesians chapter 6. हम इन चारों जो इनका नाम को जो है इफिसियों छठाध्याय में देखते हैं। So Ephesians chapter 6 and verse 12. इफिसियों छठाध्याय का 12 वचन। If anyone wants to read it, you can. Please read it in the mic. यदि कोई पढ़ना चाहते तो पढ़े, कृपया माइक पर पढ़े। इफिसियों छठाध्याय का 12 वचन। Continue. Okay. Yes. Thank you. English, anyone? Against the ruler of the darkness of this world, against spiritual wickedness in the high places. Yes. So here we have terms like principalities, यहाँ हम देखते हैं कि प्रधानों, which refers to princes or rulers among the demons. यहाँ देखते हैं कि राजकुमार या तो शैतानों के बीच में जो शासन करता है वो। Next, we see the term powers. अगला हम देखते हैं अधिकारी। So powers meaning delegated power who have been sent to do the evil work. इसका अधिकारी का मतलब ये जो है प्रत्यायोजित अधिकार है जो भेजे गए हैं करने के लिए। And rulers of darkness, that's also a category. तो अंधकार के हाकिम वो भी एक श्रेणी है। Spirits of wickedness. दुष्टता की आत्माएं। So you can notice that the kingdom of darkness is, in a way, it is organized. ये हम देखते हैं कि अंधकार के राज्य जो है इस प्रकार से संगठित की गई है। Satan is not, yesterday I told you, Satan is not like God. कल मैंने बताया था शैतान जो है परमेश्वर जैसा नहीं है। Because he is created being. क्योंकि शैतान जो है सृजा गया वस्तु है। God can be present everywhere. परमेश्वर हर जगह में रह सकते हैं। But Satan cannot. शैतान नहीं रह सकता है। But then how is he doing his work then? लेकिन वो अपना काम कैसे कर रहा है? Because he can't be everywhere. क्योंकि वो सब जगह में नहीं रह सकता है। He uses these spirits. तो अपने आत्माओं को उपयोग कर रहा है। So in that kingdom, he tells the other spirits what to do. They have, their team, and they go do the work. तो उनके राज्य में जो है उन आत्माओं को कहता है, फिर उनके पास वो टीम रहती है, वे जाके वो काम को करते हैं। So how come Satan has created this kind of kingdom? कैसे ये शैतान ने इस प्रकार के राज्य को बनाया? Because he likes to copy. क्योंकि वो जो है नकल करना पसंद करता है। He can see God's kingdom. वो परमेश्वर का राज्य को देख सकता है। He knows that there are angels. वो जानता है कि वहाँ पे स्वर्गदूत है। And the angels are on different assignments. और स्वर्गदूतों का अलग अलग कार्य है। So when he wants to do his work, he's copying the same structure but doing his evil work. शैतान जो जब अपना काम को करना चाहता है तो परमेश्वर का उसी संगठन को देखता है और अपना काम को करने के लिए उसका इस्तेमाल करता है। Now the next thing to understand about the demonic world is that the spirits are very specialized. और अंधकार के चीजों को देखते हुए हम ये समझ पाते हैं कि वो जो आत्मा जो है विशेषित है। Specialized means they will do what they are good at doing. विशिष्ट का मतलब होता है वे वो काम करेंगे जिसमें बहुत ही कौशल है, बहुत अच्छा करने में वे है, योग्यता है, वे काम करते हैं। See, those of us from the medical field, you have cardiology, you have pulmonology, different departments. जब आप डॉक्टर है तो आप जान पाएंगे कि हर एक अंगों के लिए अलग अलग उसके अनुसार वो पढ़े रहते हैं। Right? So if you go to that doctor, he will treat you specific to those organs or systems. जिस अंगों के लिए वो पढ़े उन डॉक्टर के पास जाएंगे तो बहुत ही उसमें विशेषज्ञ हैं, इसलिए वो उसमें वो इलाज करेंगे। So demons are something like that. शैतान जो है कुछ इस प्रकार से है। So there are spirits which are experts in causing confusion. तो वैसे कुछ आत्माएं होते हैं इसमें बहुत ही विशिष्ट है, विशेषज्ञ है कि वो भ्रम को फैलाने के लिए। There are spirits which are very good at causing fear. और कुछ आत्माएं ऐसे हैं वो उसमें इतना काबिलियत है कि भय को लाने के लिए। Some are very good at bringing
particular kind of sickness. कुछ आत्माएं इसमें बहुत ही बड़ी अच्छी हैं कि बीमारियों के लाने में। So there are spirits, later we'll see names, blind spirit. हम कुछ आत्माएं भी हैं जो अंधा करने वाली। So if it is a blind spirit, its job is to make the person blind. यदि अंधा आत्मा है तो उसका काम है लोगों को अंधा करना। So we usually know what spirit is it by the name. आमतौर पे हम उसका कौन सा आत्मा है जानने के लिए उनके नाम से पहचान पाते हैं। So if it is a jealous spirit, we know the work is causing jealousy. यदि वो जो है ईर्ष्या करने वाला आत्मा है तो वो जो है उसका काम रहेगा ईर्ष्या को फैलाना। Right? So did you understand specialized? क्या विशिष्ट के बारे में आप समझ गए? समझ गए? Okay, good. Next, there are territorial spirits. वह प्रादेशिक भी होता है आत्मा। So territorial means spirits over a region. प्रादेशिक आत्मा मतलब है आत्मा जो है कुछ एक प्रदेश में ही रहता है, एक जगह में रहता है। So it can be a state. ये हो सकता है कि एक राज्य में, It can be a nation, देश में हो सकता है, or it can be a couple of nations. या तो बहुत सारे देशों में। Right? So there are spirits that control that whole area. वैसे आत्मा है वो जो पूरे उस क्षेत्र को अपने नियंत्रण में रखते हैं। So there will be something like a prince, वो जैसे कि राजकुमार के समान, and they will have many spirits under them. और उनके नीचे जो है बहुत सारे आत्माएं होती है। So when you read like Daniel chapter 9, Daniel chapter 10, there you see Prince of Greece, Prince of Persia. तो जब दानियल के 9 और 10वां अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां बताया गया कि यूनान का राजकुमार या तो पर्सिया का राजकुमार। So these names are given to demon spirits. ये सारे नाम जो है शैतानी आत्मा को दी गई They're है। not earthly princes. वे पृथ्वी के राजकुमार नहीं है। So what has Satan done? According to the nations that exist, he has appointed princes. जैसे यहाँ राज्य होता है उसके अनुसार उसने जो है अपना आत्माओं को नाम दिया है। And according to which nation they are ruling, they will do their work. और जिस क्षेत्र में वे कार्य करना शासन कर रहे हैं उस जगह के लिए वे शासक रहेंगे। Right? So that is the understanding about territorial spirits. प्रादेशिक आत्मा का ये हमारा समझ है। Everyone is fine with that? ठीक है। Okay, good. Now let us see the different names of Satan. शैतान के अभी अलग अलग नामों के बारे में हम देखेंगे। We know that he was called as Lucifer, हम जानते हैं कि वो उसका लूसीफर उसको कहलाते हैं। but then the Bible also uses other terms now. और बाइबल अगले दूसरे शब्दावली को भी इस्तेमाल करती है। So I'll read it in English. Hopefully it'll be similar in Hindi. So devil is a word that is used in English, शैतान, and the meaning of this word devil is mainly slanderer. Slanderer meaning somebody who speaks evil of others behind their back. तो यहाँ जो निंदा करने वाला बोला है, निंदा करने वाले का मतलब है जो किसी के पीठ के पीछे उनका निंदा करना या उनका गलत बोलना। Okay, so why is he a slanderer? Because that's what he does. उसका नाम क्यों निंदा करने वाला है? क्योंकि वो वही करता है। The other terms which are used are adversary, विरोधी एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, accuser, दोष लगाने वाला, old serpent and dragon, पुराना सर्प और अजगर, then roaring lion, गरजने वाला सिंह, tempter, परीक्षक करने वाला, deceiver. धोखा देने वाला। The Bible also says God of this world. और बाइबल ये भी बताती है कि संसार का ईश्वर। But in English, we don't put capital G, we put small g. अंग्रेजी में जो है हम अक्षर को जो है छोटा जी में लिखते हैं। So it doesn't say that he is the real God of this world, but he behaves like a ruler. तो इसके मतलब ये नहीं कि वो सही में असल में परमेश्वर है, वो उसके शासक के जैसे वो व्यवहार करता है। He is also called as the prince of the air. वो जो आकाश का हाकिम भी कहलाता है। And in 2 Corinthians 11 and verse 14, the Bible calls him angel of light. दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय के 14 वचन में बाइबल बताती है कि वो जो है ज्योतिर्मय दूत है। Can you see how deceptive he is? क्या आप देख पा रहे हैं कि वो कितना धोखेबाज लग रहा है? He'll come like angel of light. वो
ज्योतिर्मय स्वर्गदूत जैसे आता है। So we will see later that in all his methods he's very deceptive. बाद में हम देखेंगे उसके सारे जो तरीके हैं उसमें जो बहुत ही धोखा देने वाला रहता है। He will not come directly. वो सीधा नहीं आएगा। See, he will not come with two horns, one tail, right? He won't come to you like that. वो आपके पास दो सिंग के साथ और पूंछ के साथ नहीं आएगा। He won't come with visiting card. Says Lucifer, hi, nice to meet you. वो अपना विजिटिंग कार्ड लेकर नहीं आएगा कि मैं आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। Because if he comes like that, you will immediately identify. क्योंकि इस प्रकार से अगर आएगा तो आप तुरंत ही उसे पहचान लेंगे। But he doesn't want you to identify. लेकिन वो नहीं चाहता कि आप पहचाने उसे, So he will come as angel of light. इसलिए वो ज्योतिर्मय दूत के समान आएगा। So he will look bright, he will look calm, peaceful. इसलिए वो बहुत ही ज्योति जैसे दिखेगा और एकदम शांत ऐसा दिखता वो आएगा। So when he comes, we won't find out. जब वो आएगा तो हम उसे पहचान नहीं पाएंगे। We will welcome हम उसे स्वागत करेंगे, and then get into trouble. फिर परेशानी में पड़ जाते हैं। Right? So usually when Satan wants to attack, he will not do directly. आमतौर पे जब भी शैतान आक्रमण करना चाहता है वो सीधा नहीं करेगा, But he will do it in a very, very tricky way. वो बहुत ही चालाक भरी तरीके से करेगा। Because he knows how to identify people's weaknesses. क्योंकि उसे वो जानता है कि लोगों को कमजोरी को कैसे पहचाने, So he will understand the weakness तो उस कमजोरी को पहचान समझता है and then he will come in the most deceptive way. और वो जो है बहुत ही धोखे के तरीके में आएगा। That is the way Satan works. इसी तरीके से शैतान आता है। You remember he went to Eve आपको याद है वो हवा के पास गया and he said, "Oh, such a nice fruit. तो उसने कहा कि हाँ कितना अच्छा फल है, Don't you want to try it? क्या तुम ऐसा कोशिश नहीं करना चाहती हो? You will become wise like God." तुम परमेश्वर के जैसे बुद्धिमान बन जाओगी। Sounds good, right? बहुत अच्छा, सुनने में अच्छा लग रहा है, ठीक है। So when she felt good about it, जब उसे ऐसा महसूस की कि बहुत ही अच्छा है, she went and ate it. वो जाकर वो ली और खाई। You see, she sinned, Eve sinned, हम देखते हैं कि हवा ने पाप किया, but Satan deceived her, लेकिन शैतान उसे धोखा दिया, बरमाया। right? So he will come in the nicest way and deceive. वो जो बहुत ही अच्छी तरीके से आएगा और धोखा देगा। So that is why we are learning to be very, very alert. इसीलिए हम जो है कैसे सतर्क, बहुत ही सतर्क रहने के बारे में सीख रहे हैं। Now, another name that he has is Beelzebub. और एक नाम उसका जो है बेल्ज़ेबूब। We read about this in Matthew chapter 10 and Matthew chapter 12. हम जो मत्ती 10वां अध्याय और 12 अध्याय में पढ़ते हैं इसे। Now, the word Beelzebub also is the lord of the dung. ये बेल्ज़ेबूब का में अर्थ जो और एक जो है गोबर का स्वामी And it is also the lord of filth और गंदगी का स्वामी, and the lord of the flies. मक्खियों का स्वामी। Okay, so that's exactly what it means. तो जो बताया गया वही है वो। Now, let's try to understand how he works. आइए अब देखते हैं वो किस प्रकार से वो कार्य करता है। See, we don't want Satan or demons to come, right? हम शैतान या उसके आत्माएं आना नहीं चाहते हैं, सही है। Yeah. So then we should keep our heart and our life clean. तो अगर वो हमारे पास नहीं आए तो हमें जो हमारा हृदय और हमारा जीवन को साफ शुद्ध रखने की जरूरत है। Let me give you one example. मुझे एक उदाहरण दें। Somebody gives you nice biryani. कोई आपको बहुत ही अच्छा बिरयानी दिए है। Okay, now everybody is concentrating. I can see. अभी सभी का ध्यान मेरी ओर आ रही है। So you take that biryani, आप उस बिरयानी को लेते हैं, you keep it here. यहाँ रखते हैं, You don't eat it. आप खाते नहीं। Next day, biryani is here. कल बिरयानी यहाँ पर है, Till Sunday, biryani is here only. रविवार तक बिरयानी यहीं पर है। What will happen? क्या होगा? Yeah, it will spoil and you will have lots of flies. You'll have insects coming. तो आप देखेंगे कि वो खराब हो जाएगी, फिर उसके बाद मक्खियां बाकी चीजें उसके ऊपर उड़ती रहेगी। Okay. Now, I don't want the flies and the insects to come. What should I do? तो मक्खियों को वहां ना आना चाहती हो तो मुझे क्या करना चाहिए? Eat a
No? Okay. Throw it, right? तो Throw उस it. खराब वाले खाने को खाना है नहीं, उसको फेंकना है। And then what? तो उसके बाद क्या है? What will you do? Clean. Wash the plate. उसके बाद उस बर्तन को धोए, Keep it clean. एकदम शुद्ध रखे उसे, Keep it here. यहाँ पर रखे। After that, will the flies come? शुद्ध करके रखने के बाद क्या वहां मक्खियां आएगी? No. नहीं। Why? क्यों? There is no dirt. क्योंकि वहां गंदगी नहीं है। See, even in our life, same concept. यही संदर्भ है हमारे जीवन के लिए भी। When we are walking in sin, when we are walking in disobedience, जब हम पाप में चलते हैं, अनाज्ञाकारिता में चलते हैं, when we are walking in rebellion, when we are walking in, any other kind of evil, या तो हम विद्रोह करते हुए चलते हैं या किसी भी बुरी चाल चलते हैं, it's like garbage, उसका मतलब जो है कचरा है। right? And then demons are like flies. They like garbage. और जो शैतान जो है मक्खियों के समान है, उन्हें जो है कचरा बहुत पसंद आता है। So, because there is filth in my heart, demons come. क्योंकि मेरे हृदय में गंदगी है, इसलिए शैतान आएगा। But if I don't want any influence of, demons to come in, I need to keep my heart and my life clean. यदि शैतान का कोई भी प्रभाव मुझ पर नहीं आना है, तो मुझे जो है मेरा जीवन को और मेरा हृदय को साफ रखने की जरूरत है। Right? So that is why here the name given to Satan is king of the flies. इसीलिए शैतान के लिए नाम दिया गया है कि मक्खियों का स्वामी। So he will look for sin in our lives. वो जो है हमारे जीवन में पाप को ढूंढेगा। He will look for any kind of filth in our hearts. हमारे हृदय में कोई गंदगी है कि इसकी खोज में लगा रहेगा। And that will automatically welcome demons. ये जो है अपने आप शैतान को स्वागत करती है। Right? So that is why we need to ask God to come and cleanse our hearts and cleanse our lives as believers. इसीलिए हम परमेश्वर से कहना चाहिए कि हमारे हृदय को, हमारे जीवन को शुद्ध करने के लिए। So there are other names of Satan also. और शैतान के और भी नाम हैं। Evil one, दुष्ट है, wicked one, और धोखा देने वाला, thief, चोर, murderer, हत्या करने वाला, liar. झूठ बोलने वाला। So based on these terms, we know the activities that he is involved in. तो ये नामों के आधार पर हम देख सकते हैं, पहचान पाते हैं कि वो किस काम में रहता है। So don't believe him, तो इसलिए उस पर विश्वास नहीं करें। right? He might say something in the nicest way, but don't believe him, वो बहुत ही अच्छी तरीके से कुछ कह सकता है, लेकिन उसका विश्वास मत करें। right? So anyway, we'll go to other things later. Let's talk about the different kinds of demons. आइए हम दुष्ट आत्माओं के प्रकार के बारे में देखते हैं। So the Bible enlists demons according to their activities. बाइबल जो है उनके कार्य के अनुसार उनका नाम दिए गए हैं। So there are spirits which are called as deceiving spirits. ऐसे आत्माएं होती हैं जो धोखा देती है। There are spirits that spread doctrines, and they are called as, or these doctrines are called as doctrines of demons. तो ऐसे उपदेश दिया जाता है कि इन आत्माओं के द्वारा, तो दुष्ट आत्माओं के उपदेश ऐसा कहा जाता है। Spirit of Antichrist, जो मसीह विरोधी का आत्मा, jealous spirit, ईर्ष्यालु आत्मा, familiar spirit. परिचित आत्मा। So what is familiar spirit? परिचित आत्मा यानी क्या है? Yeah, he knows. So familiar spirit is any demon spirit that knows us very well. परिचित आत्मा यानी कोई भी शैतानी आत्मा है जो हमारे बारे में बहुत अच्छे से जानती है। So the spirit knows, like what is the weakness, how to make me fall. तो वो आत्मा जो है मुझे अच्छे से जानती है, मेरा कमजोरी क्या है और मुझे गिराने की तरीका क्या है। Right? So such spirits are called as familiar spirits. ऐसे आत्माओं को परिचित आत्मा कहते हैं। There are blind spirits, अंधी आत्मा, deaf and dumb spirit, बहरी और गूंगी आत्मा, spirit of infirmity. दुर्बलता की आत्मा। So spirit of infirmity causes sickness. जो दुर्बलता की आत्मा जो है बीमारी को लाती है। Unclean spirit, अशुद्ध आत्मा, foul spirit, दुष्ट आत्मा, spirit of disobedience, अनाज्ञाकारिता की आत्मा, spirit of divination, बाबी कहने वाली आत्मा, lying spirit, झूठ बोलने वाली आत्मा, perverse spirit, ब्रह्मता का आत्मा, spirit of heaviness,
और बारीपन की आत्मा, spirit of harlotry, वेश्यावृत्ति की आत्मा। right? So anyway, the list is there in our notes. तो हमारे नोट्स में ये सारी सूची दी गई है। So what can we understand from this? इसमें से हम क्या समझ सकते हैं? See, if you take spirit of disobedience, आप अनाज्ञाकारिता का आत्मा को ले लीजिए। usually, this spirit, the Bible says that it is working in unbelievers. असल में जो ये बाइबल बताती है कि ये आत्मा जो है अविश्वासियों के अंदर कार्य करता है And it makes them so disobedient towards God. और उन्हें जो है परमेश्वर के प्रति बहुत ही अनाज्ञाकारी बनाते हैं। So, they don't live a good life, and they just destroy the beautiful life that God has given. वे जो है अच्छा जीवन नहीं जीते हैं, परमेश्वर उन्हें जो सुंदर जीवन दिए उसे नष्ट कर देते हैं। So what about spirit of fear? भय की आत्मा के बारे में क्या है? So what happens is little bit fear is normal. थोड़ा बहुत भय तो ठीक है, साधारण है। Do you agree with me? क्या मेरे साथ आप सहमत है? Anyone here, when you cross the road, you don't see right, left? No, I don't want to see. I'm not afraid. Just cross. आप में से कोई ऐसे रोड पार कर रहे हैं, आगे दाहिने बाएं नहीं देखते हैं कि आप मुझे डर नहीं है, मैं सीधा जाऊंगा, ऐसा बोल के कोई जाते हैं? That is foolishness, वो जो है मूर्खता है। right? We have little fear. हमारे पास थोड़ा डर है, That is normal. It is good. वो साधारण है और अच्छा है। But when the fear becomes so uncontrollable, लेकिन वो भय जो है अनियंत्रित हो जाती है and it is no longer me who I can feel that it is coming from an external source. तो अभी जो ये मैं नहीं हूं, मैं इस बात को एहसास कर पाती हूँ, ये जो है बाहरी स्रोत से आ रहा है। Something is making me fear, कुछ तो है मुझे डर में डरा रहा है, right? And making me fear a lot. और मुझे बहुत ही डरने के लिए बना रहा है। That could be spirit of fear, वो जो है भय का आत्मा हो सकता है। right? Spirit of fear is working. भय का आत्मा काम कर रहा है। Spirit of jealousy. ईर्ष्या का आत्मा। So when we don't have a good heart towards others, जब हमारे पास दूसरों के लिए अच्छा दिल नहीं होता है, then spirit of jealousy can come and influence, तब जो है ईर्ष्या का आत्मा हमारे अंदर आके प्रभाव डाल सकता है। and we are feeling jealousy all the time, jealousy no matter what, कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो या ना हो, हम बस ईर्ष्या में ही रहते हैं, because we are experiencing the work of the spirit of jealousy. क्योंकि हम जो है ईर्ष्या के आत्मा का कार्य का अनुभव कर रहे हैं। Okay, everyone is understanding how demons work? क्या आप सब समझ रहे हैं शैतान कैसे कार्य करता करके? Okay, great. Now let's learn a few more things about demons. आइए शैतान के बारे में और कुछ चीजें सीखते हैं। Demons know that God exists. शैतान जो है परमेश्वर है, इस बात को जानते हैं। Demons usually have names and personality. दुष्ट आत्माओं के नाम होते हैं और वे व्यक्ति भी होते हैं। There are different levels or degrees of wickedness in the demonic kingdom. तो जो शैतान के राज्य है, वहाँ जो है अलग अलग परिमाण के स्तर होते हैं। Demons have free will and they can choose. और दुष्ट आत्माओं के पास इच्छा होती है, वे चुन सकते हैं। Demons can recognize believers who walk in authority. और दुष्ट आत्माएं जो विश्वासियों को जानती है, जो अधिकार में चलते हैं। We all said yesterday that demons are not spirits of dead people. कल हम बताए थे कि जो शैतान जो है मरे हुओं का आत्मा नहीं है। And demons know their destiny. और जो दुष्ट आत्माएं जो उनका गंतव्य को जानते हैं। You remember when Jesus came to cast the demons out, they asked him, why have you come before our time? तो आपको याद है जब यीशु मसीह उन्हें वो दुष्ट आत्मा को निकालना है, तो दुष्ट आत्मा ने बस समय से पहले निकाल, अब क्यों मुझे निकालने आए हो? So they also know that there is a timeline, and at the end of that timeline they will be thrown into the lake of fire. शैतान भी ये जानते हैं कि उनका एक समय बचा है, समय के अंत में जो है उन्हें जो आग में डाल दिया जाएगा। Okay, so demons know the timing, what's happening. तो शैतान को समय के बारे में पता है क्या हो रहा है इसके बारे में। And demons can influence many areas of our life. और शैतान जो है हमारे जीवन के कई सारे क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं। So we have only roughly 5 minutes left for this session. इस सत्र के हमारे पास 5 मिनट ही बचा है। If you have any questions, quickly ask about demons, because next session we will talk about angels.
आपके पास यदि कोई सवाल है शैतान के बारे में जल्दी से पूछें, क्योंकि अगला भाग में जो है हम स्वर्गदूतों के बारे में देखने जा रहे हैं। Online students, please feel free to ask questions as well. ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े छात्रों से भी हम निवेदन करते हैं कि आप भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। Yes, brother. मैम अगर किसी नॉन क्रिश्चियन व्यक्ति रहता है जो हमारे पास नया आता है, जिसके अंदर डेविल स्पिरिट होता है या फिर कुछ दुष्ट आत्माएं होती है, जादू टोना करके उसके ऊपर भेजा जाता है, जब हम उसको प्रार्थना के द्वारा निकाल देते हैं उसमें से, तो वो दुष्ट आत्माएं वहीं वापस जाती हैं या कहाँ जाती है वो दुष्ट आत्माएं? Okay, so brother is asking, when we cast the demon out of a person, possessed person, where will the spirit go? Will they go back to the same person or not? So in Matthew 12, we see what Jesus says. Usually when spirit comes out, it will go around and look for another home. तो मत्ती 12 में हम देखते हैं कि जब वहां से आत्मा निकाल दी जाती है तो वो जाकर देखते हैं कि किसी और जगह ढूंढती है। Okay, then it will come back to its original home. तो उसके बाद ढूंढने के बाद जो है अपना खुद का जो पहले जहाँ थी उस जगह पे आती है, So it will come back. वो वापस आएगी। Now this house or the that person, they have to be clean, meaning they have to commit their life to Jesus. तो जिस व्यक्ति को पहले से दुष्ट आत्मा ग्रस्ती निकाल दी गई, वो व्यक्ति को जो है अपना जीवन को परमेश्वर मसीह के हाथ में सौंपना है। And they have to leave all those, magic, sin, all those things. और उन्हें जो जादू टोना कर रहे थे उनका पाप सारा सब कुछ छोड़ना है। Then it cannot enter. तब जो है ये आत्मा उसके अंदर प्रवेश नहीं कर But सकती है। if again they are sinning, again they are doing those things, it will go back inside. फिर से वो पाप करेंगे और जो कार्य परमेश्वर को पसंद नहीं है वो करेंगे, तो वो तब जो है ये आत्माएं उसके अंदर प्रवेश कर सकती है। And Bible also says it will not come alone. और बाइबल ये भी बताती है कि वो आत्मा अकेला नहीं आएगी, It will come with 7 other more wicked spirits than itself. वो जो अपने से भी अधिक दुष्ट और 7 आत्माओं को लेकर आएगी। So the condition of the person later will be worse than what it was before. और वो व्यक्ति का दशा जो है पहले से बाद में की जो दशा है बहुत ही खराब हो जाती है। Okay. मेरा एक प्रश्न है। हाँ, yes brother. कह रहे कि अगर दुष्टात्मा चोर आपने बोला कि चोर का भी रूप होता, मतलब चोर के समान आती है, तो एक व्यक्ति के जीवन में वो क्या क्या चुरा सकता है? Brother, one more time please. और एक बार बोलिएगा। आपने कहा कि चोर मतलब चोर के समान भी शैतान को या दुष्ट आत्मा को दर्शाया गया है, तो वो एक व्यक्ति के जीवन में वो क्या क्या चुरा सकती है? Oh, okay. So what can they steal? So they can steal our peace, our joy, our time. वो जो हमारा शांति को, हमारा आनंद को और हमारा समय को चुरा सकते हैं। Right? They can steal many things from our lives, our dreams, our hopes. हमारे जीवन से कई सारी चीजों को चुरा सकते हैं, हमारे सपनों को, हमारी आशाओं को, Our relationships, हमारे रिश्तों को, our career. हमारे जो आजीविका है। Yeah, so many things can be stolen. बहुत सारी चीजें हैं जो चुराई जा सकती है। Finances, हमारी जो पैसे की अर्थव्यवस्था, health. हमारी स्वास्थ्य। Okay, brother Abhay, is that okay? मैम एक जगह पर यूहन्ना उसका 10 का 10 में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोर हत्या करने, घात करने, नष्ट करने, तो नष्ट भी कर सकती है क्या वो? हाँ, yes, he can destroy. ये भी करेगा वो। मैम एक क्वेश्चन। Okay. मैम Yes, brother. मैम एक क्वेश्चन है। स्क्रियतु योद्धा के अंदर पहले देख लेते हैं पतरस के ऊपर। पतरस जब ये बात बोलता है कि प्रभु मैं तुझे सूली पे चढ़ने नहीं दूंगा, तो उस टाइम पे जब यीशु शैतान को डांटता है और निकल जाता है, राइट? लेकिन स्क्रियतु योद्धा वो एक अकाउंटेंट टाइप का वो यीशु मसीह के साथ था, तो उसके अंदर जब शैतान काम कर रहा था, यीशु मसीह ने उस टाइम पे स्क्रियतु योद्धा के अंदर से शैतान को क्यों नहीं भगाया? Okay. So why didn't he
In the case of Peter, Jesus says, "Get thee behind me, Satan." Right? But in the case of Judas Iscariot, Jesus doesn't seem to cast the demon out. Is that what you're asking, brother? जी जी Okay, so I think it depends on how much access somebody has given to Satan. ये मुझे लगता है कि जिन व्यक्ति ने अलग अलग व्यक्ति पर शैतान को अपने अंदर आने के लिए कितना पहुंच दी है उस पर निर्भर करता है। Okay, so we will look at it. See, you can give this much access. अगर आप इतना सा जगह देंगे, You can also give this much access. इतना बड़ा जगह भी दे सकते हैं। So it looks like Judas Iscariot gave him a lot of access. और ऐसा लगता है कि यहूदा इस्करियोती जो है बहुत सारे जगह दे दिया है। And also willingness matters. और साथ ही साथ इच्छा मायने रखता है। So if I don't want, Satan will sit here only. He won't go out. Even Jesus will not try to cast him out because I am not allowing, right? यदि मैं अनुमति नहीं दूं, मैं नहीं चाहूं कि वो निकल जाए, तो यीशु मसीह भी नहीं निकालेंगे। तो मुझे जरूरी है कि उसे अनुमति देना है। Judas was not willing. यहूदा इच्छुक नहीं था। नहीं, एक्चुअली पतरस को भी तो पता नहीं था उसके अंदर शैतान काम कर रहा है। No, but So- the influence is not the same. ना ना एक्चुअली मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ जुदा के अंदर क्या एक बार में ही शैतान ने पूरा अपना जगह बनाया No. Over time. ओवर टाइम, राइट? Over time. तो मैं वही बोल रहा हूँ, जब ओवर टाइम जब बनाया है धीरे धीरे धीरे, उसको पहले छोटा सा स्टार्ट किया, लोभी, मतलब वो थोड़ा सा लोभ किया, तो उस टाइम पे ही अगर यीशु अगर उसको बोलते, जैसे पतरस के अंदर जैसे शैतान ने छोटा सा काम किया, तो शैतान को यीशु मसीह ने तुरंत डांटा। Correct. और यीशु को पता था कि इस्करियोती योद्धा चोरी कर रहा है, Mhm. फिर भी यीशु मसीह ने क्यों उस जगह पे उसको रोका नहीं? So all are getting impatient, break time. But what I would say is that, see, Judas is also disciple of Jesus. यहूदा इस्करियोती भी यीशु मसीह का चेला है। The way Peter was trained, Judas is also trained. जिस प्रकार से पतरस की प्रशिक्षण हुई, उसी प्रकार से यहूदा इस्करियोती की भी प्रशिक्षण हुई। But we can only guess that he was willing for Satan to be there. So that's why you हम बस see a यही major अनुमान difference. लगा सकते हैं कि यहूदा जो है शैतान को वहीं रहने की, अपने अंदर रखने की इच्छा रख रहा था। Okay. So thank you, everyone. आप सबका Everyone धन्यवाद। wants a break, so take a break. We'll discuss more after the break. Yeah. Thank you so much. ब्रेक God ले bless. लें, ब्रेक के बाद इसके बारे में बात करेंगे।